आइए हम मेज के संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में, और भाई नवनीत उनका अनुवाद करेंगे। Navneet bhai, are you there? जी भाई जी। When our Fale was sharing the message, जो हमारे भाई फाले संदेश बांट रहे थे, so one thought really struck me एक that विचार एक विचार जो मेरे मन में आया that when we talk of praise, worship, thanksgiving, we normally equate it with feelings of joy, happiness, and as if we're very happy. जब कभी हम प्रशंसा की, स्तुति की या आराधना की बात करते हैं तो हम उसको खुशी या आनंद के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि आप बहुत खुश होंगे उस टाइम। Yeah, that is the kind of emotional expression that is there. A lot of joyfulness is there. ये ऐसी भावना उसके साथ जुड़ी होती है, ऐसा आनंद जुड़ा होता है, अक्सर ये मानते हैं लोग। But again, I understood today that it's not always going to happen. Many times a person may be weeping and yet he'll be worshiping. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार आदमी रो रहा होता है लेकिन फिर भी वो प्रभु की आराधना कर रहा होता है। Many times he's thanking the Lord, but he has no thankfulness in his heart. कई बार वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा होता है लेकिन उसके हृदय में कोई धन्यवाद की बात ही नहीं होती। I mean, emotionally, he is totally dead emotionally, but he is worshiping and thanking the Lord because that is what the Lord has called us to do. वो भावनात्मक रूप से एकदम बुझा हुआ है, लेकिन फिर भी वो प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने उसे इसलिए बुलाया है। To worship the Lord, it is His will that we ought to worship Him. और आराधना करना ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए कि हम उसकी आराधना करें। So whether my emotions are involved, my emotions are there or not there, I still ought to worship Him. तो चाहे मेरे भावना उमड़ रहे हो या मेरे भावना एकदम बुझे हुए हो, मुझे तो आराधना करनी ही है। Since the last 3 Sundays we were looking at the life of Jacob. Last Sunday we saw the life of Joseph. पिछले 3 संडे से हम यूसुफ की, याकूब के जीवन को देख रहे थे, और पिछले सप्ताह हमने यूसुफ के जीवन को देखा। And we saw how amazingly we see Christ in Joseph's life. और हमने बड़ी अद्भुत रीति से यूसुफ के जीवन में मसीह को देखा। He is in character he's like Daniel. We don't find any obvious fault either in Joseph's life or in Daniel's life. हम उसके चरित्र को डैनियल के साथ की तरह देखते हैं। हम उसके जीवन में या फिर डैनियल के जीवन में कोई दोष नहीं देखते। Some people say there is one fault when he brought his sons to Jacob. That is one place where we find a fault in Joseph. But otherwise, there is no obvious outward fault recorded in the Bible. कुछ लोग कहते हैं कि यूसुफ में एक दोष था जब वो अपने बेटों को याकूब के पास लेके आया, लेकिन बाहरी रूप से हम यूसुफ के चरित्र जीवन में कोई दोष नहीं देखते। He looks so much like the Lord. Bhanav says that there are about 100 points in which Joseph looks like the Lord Jesus. यूसुफ बिल्कुल मसीह की तरह दिखाई देता है, और भाई बारनबाउस कहते हैं कि 100 बातें हैं जिसमें वो एकदम प्रभु की तरह दिखाई देता है। But diametrically opposite is another character, and that is the character of his brother Judah. लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत उसके भाई का चरित्र है, जो है यहूदा का चरित्र। Some people say historically Judah was about 11 years older, 10 to 11 years older to Joseph. कुछ लोग कहते हैं कि यहूदा करीबन यूसुफ से 10 या 11 साल बड़ा था। So on one hand, when we can't find fault in Joseph. तो एक तरफ जब हम यूसुफ में कोई दोष नहीं ढूंढ पाते, we can find nothing but faults in Judah. दूसरी तरफ हमें यहूदा में गलतियों के और दोष के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। We can't find anything right with him. हम उसके जीवन में कुछ अच्छी चीज देख ही नहीं पाते। Yet he is one of the greatest examples of transformation in the Bible. लेकिन फिर भी वो बाइबल में बदलाव का एक बड़ा अद्भुत उदाहरण है। When he was transformed, we see Christ in him at the peak of Christ's glory. जब वो बदल गया
तो हम उसके अंदर मसीह की महिमा को देखते हैं, मसीह को महिमा में देखते हैं। The very peak was when Christ was dying on the cross as a ransom for sinners like you and me. उसकी महिमा की पराकाष्ठा ये थी कि जब वो क्रूस के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए मर रहा था, And Judah gave his life as a ransom for Benjamin, his brother. और यहूदा ने अपने जीवन को अपने भाई बिन्यामीन के लिए यूं ही दे दिया। These two parallel stories continue for about 20 years parallelly. ये दो कहानियां 20 साल तक एक साथ चलती रही ऐसी। The Lord said, go to the highways and the byways and get both the good and the bad and fill my house. प्रभु ने बोला कि तुम मार्गों में जाओ और वहां से दोनों अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को मेरे घर में ले आओ। So Joseph was good and Judah was bad, but both were shaped by the Lord. यूसुफ अच्छा था और यहूदा बुरा था, लेकिन दोनों को प्रभु ने बनाया। Let us read from Genesis 43, 30 to 34. This is the intercessory prayer of Judah in front of Joseph. Genesis 43, 30 to 34. उत्पत्ति 43 उसकी 34 से लेके 44वीं आयत तक, यहाँ पर 30 से 34 पढ़ दीजिए भाई। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और ये सोच कर कि मैं कहाँ जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। नहीं और भाई, अपना 43, 30 to 34. हाँ 30 to 34। यस भाई, एक मिनट में चैप्टर रिपीट कर दीजिए प्लीज। Sorry, 44. I'm sorry, bhai. 44, 30 to 34. I'm sorry, 44, 30 to 34. 44, 30 से 34। इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और वे लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण ये देख के कि लड़का नहीं है, वे तुरंत ही मर जाएगा, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ ये कह के इस लड़के का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। प्रभु आप मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें। पवित्र आत्मा, मैं आपके लोगों का टाइम वेस्ट ना करूं। मेरे पास ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है और जो समय आपने दिया था तैयारी का, उसमें बहुत सारा समय मैंने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये भी मानता हूं प्रभु कि मैं आपके वचन से ऐसा प्रेम नहीं करता और तब भी मैं आपका वचन प्रचार करने खड़ा हूं। मैं सच में इस लायक नहीं हूं प्रभु, आप मुझे अपने लहू से शुद्ध करें। मैं प्रभु पहले अपने आप को इस वचन में देखूं। आप दया करके निर्गमन 4:12 मेरे लिए पूरा कर। मेरे प्रभु मुझ पर दया कर और आप जरूर इस समय किसी छोटी रीति से भी आपके लोगों के जीवन में काम करें, मेरे जीवन में काम करें। ट्रांसलेशन मेरे भाई को सहायता कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। आमीन। So I said that there were two parallel stories that continued for about 20 years. ये दो समानांतर कहानियां हैं जो 20 सालों तक लगातार चलती रही। Both good and bad were shaped by the Lord. दोनों अच्छी और बुरी, दोनों को प्रभु ने ढाला। On one hand, we saw Joseph, how he was thrown out of his father's house, cast out, sold as a slave, and how many things he suffered till he became the prime minister of Egypt. किस तरह से हमने देखा कि यूसुफ को उसके बाप के घर से बेच दिया गया, निकाल दिया गया, और उसने कितना कुछ सहा जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन गया। We see his love for his brothers, his humility, his kindness, his service. We see such an amazing quality in Joseph. हम यूसुफ में अपने भाइयों के प्रति प्यार, दया, मदद और अपने भाइयों के लिए इतनी अच्छे गुण हम उसके जीवन में देखते हैं। We saw last week that when he went out to search for them, when they'd gone to Shechem, he walked for nearly 100 kilometers to find them. That was his concern for them.
और जब वो पिछली बार हमने देखा जब वो शेकेम में अपने भाइयों को ढूंढने के लिए गया तो करीबन वो 100 किलोमीटर चला अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। On the other hand, Judah is completely different. दूसरी तरफ यहूदा एकदम पूरी तरह उलट है। He is self-centered, he is immoral, he is wicked. वो स्वार्थी है, वो अनैतिक है और वो दुष्ट है। But the Lord does not give up on him. लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ नहीं दिया। I would give up on him. मैं उसको छोड़ देता। Even though in many times I am a man like him, I would give up on Judah. यद्यपि ऐसा है कि मैं कई बार उसी की तरह का होता हूं, लेकिन फिर भी मैं उसे छोड़ देता। हम when we say in Hindi, और भाड़ में जाए, go to hell, I don't care. हम कहते हैं भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। But the Lord will never do that. He never gives up. लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता, प्रभु कभी नहीं छोड़ता। He doesn't want anyone to perish, but all to come to repentance. वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, बल्कि चाहता है कि सब पश्चाताप करें और उद्धार पा जाएं। There may be many people you hate and you want कि किसी तरह you should be rid of them, but the Lord still loves them. अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आप नफरत करते होंगे, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते होंगे, लेकिन प्रभु अब भी उनसे प्यार करता है। Paul, such a great man, he said, just forget about Mark. Mark will not come to anything. और पॉल और दूसरी तरफ मरकुस पॉल के बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। No, Paul doesn't want him. He doesn't want him at all. Mark will be totally unprofitable. और पौलुस को मरकुस एकदम पसंद नहीं है और वो तो किसी काम का नहीं है। But the Lord doesn't give up on Mark. लेकिन प्रभु ने मरकुस को नहीं छोड़ा। Mark then becomes probably the best evangelist in the New Testament. और मरकुस संभवतः नए नियम में सबसे अच्छा सुसमाचार प्रचारक बन गया। God treats each one of us as unique individuals because we are unique. और हम एक खास किस्म के इंसान हैं। No, we are unique. हम बिल्कुल अनूठे हैं. There is nobody ever born or is today or will come after you who will be exactly like you. हम एकदम अनूठे किस्म के इंसान हैं। कोई भी ऐसा नहीं हुआ है और कोई भी ऐसा हमारी तरह नहीं होएगा। Even if there are identical twins, they are never 100% alike. और जुड़वे भाई भी हो तो भी वो एकदम से एक जैसे नहीं होते। Billions of people born alive today, maybe come in the days to come. Each one has been completely unique. इतने लाखों करोड़ों लोग आज हैं, लेकिन सब एक दूसरे से एकदम अलग हैं। Suppose you have some unique thing. मान लो एक आप अनूठी चीज हो कोई। You have many other things, but there is one thing which is unique. You don't have you have only one of that kind. आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आपके अंदर No. You have many things जो बहुत अनूठा है। No. You have many things you own, but there's one thing that is very unique. आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पास एक चीज है जो एकदम अनूठी है। That becomes so precious to you. और वो आपके लिए इतनी बेशकीमती बन जाती है। Ibrahim was very rich. He was a multi-millionaire. अब्राहिम बहुत अमीर था। But he had only one son. लेकिन उसके पास एक ही बेटा था। And that son was the most precious to him. और वो बेटा उसको बहुत कीमती था। And because you are unique, that is why for God you are unique. That is why God loves you so much. और आप परमेश्वर के लिए बड़े अनूठे हो, इसलिए परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है। Think of this way, when you are gone, God cannot replace you. आप इस तरह से सोचिए, यदि आपको कुछ हो जाए तो परमेश्वर आपके जगह किसी दूसरे को नहीं ला सकता। When you die, there will be never anybody like you ever again. जब आप मर जाओगे तो आपके समान कोई दूसरा कभी नहीं होगा। We humans don't understand it, but for God you are unique. हम मनुष्य के नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर के लिए आप एकदम अनूठे हो। That is why he loves you infinitely. इसलिए वो बड़ा अनंत काल के प्रेम से आपसे प्रेम करता है। That is why the Bible says he is not happy with the death of any person. इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के नाश हो जाने से खुश नहीं होता। Because for him that person is unique.
क्योंकि उसके लिए वो व्यक्ति एकदम अनूठा है। Maybe maybe I'm waiting for the death of some people. शायद मैं किसी आदमी की मौत का इंतजार कर रहा हूँ। Good riddance. मुझे छुटकारा मिल जाएगा। But that is not how God looks at it. लेकिन परमेश्वर इस तरह से नहीं देखता। For God, and that is why God has a unique plan for each one of us. और इसलिए परमेश्वर का हम में से हर एक के लिए एक बड़ा खास, बड़ी अनूठी योजना है। He had a plan for a good person like Joseph and a bad man like Judah. उसके पास अच्छे यूसुफ के लिए एक योजना थी और एक बुरे व्यक्ति यूसुफ जैसे यहूदा जैसे व्यक्ति के लिए योजना थी। We saw last week that Joseph was 17 when he was cast out of his house by his wicked brothers. हमने पिछली बार देखा यूसुफ उस वक्त 17 साल का था जब उसके दुष्ट भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। They had cast him into a well. उन्होंने उसे गड्ढे में डाला। Can anyone remember the well that it was? How the well was like? It was told to us last time. Let us see how many who heard the message remember. Not you. वो कुआं कैसा था? क्या कोई Anyone बता सकता है? remembers? Anyone remembers what the well was like? वो कुआं कैसा था? किसी को याद है? Yeah, okay. Anyone else? You're right, right? It was shaped like it was shaped like a frustum. It was broad-based with a narrow mouth so that, dust, etc. wouldn't go in, but you can't climb out of it. वो बिल्कुल आड़े किस्म का था दीवारें, और उसका जो मुंह था वो छोटा था, उसकी जो तली थी वो चौड़ी थी, ताकि आप उसकी दीवारों से आप उसके मुंह तक नहीं चढ़ सकते थे। While in the well, he was crying out to his brothers. What were the brothers doing? Read Genesis 37:25. जब वो कुएं के अंदर था तो उसके भाई क्या कर रहे थे? पढ़िए उत्पत्ति भाई, वर्ष बता दो। 37:25. 37 उसकी 25वीं आयत। अब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे गिलाद से मिस्र की ओर चला जा रहा है। They sat down to eat. वो रोटी खाने बैठ गए। He was crying out from the well. वो कुएं से पुकार रहा है। In Genesis 42, when their guilt comes out, they said, he cried out and we did not hear him. उत्पत्ति 42 में जब वो उनके पाप ने उन्हें कचोटा तो वो कह रहे थे कि वो चिल्ला रहा था और हमने उसकी नहीं सुनी। The Barnhouse says it took 20 years for the voice to come from their ears to reach their heart. और भाई बारनबाउस कहते हैं कि उस आवाज को उनके कानों से दिल तक पहुंचने में 40 साल लग गए। 20 साल लग गए। 20 साल लग गए। But right now they are sitting here eating as if nothing has happened. और इस वक्त वो खाना खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। They are terribly monstrous brothers. वो बड़े भयानक भाई थे। Their conscience was dead. उनका विवेक मरा हुआ था। Even if a sheep falls into a pit, when it bleeds, you bring it out. और यदि कोई भेड़ भी है जब वो गिर जाती है और वो मिमियाती है तो आप उसको निकालते हो। Their hatred for Joseph had hardened their heart. यूसुफ के लिए उनके दिल में जो नफरत थी, उस नफरत ने उनके दिल को कठोर कर दिया था। Today also we see hatred in this world, in our society, that has hardened the heart of people. आज भी हम अपने समाज में नफरत को देखते हैं और इस नफरत ने उनके दिलों को कठोर बना दिया है। We don't see man as man. We kill, maim, rape without any feeling. हम आदमी को आदमी की तरह नहीं देखते, हम उनको मार देते हैं, उनका रेप करते हैं और उनको बिना किसी भावना के मार देते हैं। So these brothers sat down to eat while their brother was crying out to them. ये भाई बैठकर खाने लग गए जबकि उनका भाई कुएं में चीख रहा है। We are sat down to eat from the Lord's table. हम बैठ गए प्रभु की मेज के ऊपर से खाने के लिए। So many times our Joseph cries out from his word, "Oh Jerusalem, Jerusalem." और कई बार हमारा यूसुफ पुकारता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। He cries out from his word. वो अपने वचन से पुकारता है। But so many times there is no impact. लेकिन कई बार हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Today morning when I was preparing, I thought I will say this. रिपीट करते भाई। When I was preparing, I thought I will say this in the assembly. आज सुबह जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था मैं मंडली में ये कहूंगा। This message is not for everybody.
ये संदेश आपके लिए ग्रीटिंग्स के लिए नहीं है, No, it is not for everybody. ये हर एक के लिए नहीं है, Because some people don't care. क्योंकि कुछ लोगों को कोई परवाह ही नहीं होती है। For some people, when they are sitting and eating bread, it is only a ritual. कुछ लोगों के लिए जब रोटी और प्याले में से खाना है, वो सिर्फ एक रीति रिवाज को पूरा करना होता है। When the Lord cries out, they do not listen. जब प्रभु पुकारता है तो वो सुनते नहीं है। Their sins have hardened their heart. उनके पाप ने उनके दिलों को कठोर कर दिया है। And then they went out and sold him. और वो गए और उन्होंने उसे बेच दिया। This idea of selling was Judah's idea. ये बेचने का जो विचार था, ये यहूदा का विचार था। Look at his language in Genesis 37:26. Quickly, Genesis 37:26. उत्पत्ति 37:26 में उसकी भाषा को देखिए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ? What will it profit us? क्या लाभ होगा हमें? अरे, we kill him, what do we get? अगर हम उसे मार देंगे तो हमें क्या मिलेगा? Might as well sell him as a slave. क्यों ना हम उसको गुलाम की तरह बेच दें? We kill two birds with one stone. हम एक ही पत्थर से दो चिड़ियाओं को मारते हैं। We will rid ourselves of him. For us, he's literally dead. He's gone. हमें यूसुफ से छुटकारा मिल जाएगा, हमारे लिए Plus- यूसुफ चला जाएगा, मर जाएगा वो। Plus, we earn some money. और फिर दूसरा, हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। The brothers are hard, but Judah is harder. उसके भाई कठोर है, लेकिन यहूदा का दिल तो और भी ज्यादा कठोर है। He has choked his conscience and seared it with a hot iron. उसने अपने विवेक का गला घोट दिया है और जलते हुए छड़ से उसको दाग दिया है, सुन बना दिया They है। come back home, they lie to their father that Joseph has been killed by an animal, and the father keeps weeping all these years. वो घर आए और पिता को झूठ बोला कि उसके भाई को किसी जानवर ने मार दिया है, और उनका पिता इतने सालों तक रोता रहा दुख में। Did it not grieve them? क्या इस बात से उनको दुख नहीं पहुंचा? It seems from the word of God that bit by bit their hearts started changing. परमेश्वर के वचन से ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके उनका दिल बदलता जा रहा था। But before this, Joseph has been sold. Genesis 37 ends with that. और लेकिन इससे पहले यूसुफ बेच दिया गया। उत्पत्ति 37 इससे खत्म होती है। He's been bought by Potiphar. उसको पोतीपोर ने खरीद लिया। And then 39 tells us that he's in Potiphar's house and what happens to him. और 39 में वो पोतीपोर के घर में, और फिर पता चलता है कि पोतीपोर के घर में उसका क्या हुआ। But all of a sudden, the Holy Spirit gives us a break in 38. और एकदम से पवित्र आत्मा 38वें अध्याय में एक दूसरी बात बताती है। Chapter 38 seems to have no link with this story. ये 38 अध्याय इस कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। There is not one word about Jacob and Joseph in 38. 38 अध्याय में याकूब और यूसुफ के लिए एक भी शब्द नहीं है। It's all about Judah. ये सब यहूदा के बारे में है। Why? क्यों? Why has the Holy Spirit done this? पवित्र आत्मा ने ऐसा क्यों किया? First, to show the tremendous contrast between Judah and Joseph in 38 and 39. पहले तो यहूदा और यूसुफ के को अगल बगल दिखाने के लिए। I think another reason. मुझे एक और कारण दिखाई देता है। Because Judah's life is important. क्योंकि यहूदा का जीवन बहुत जरूरी था। The change that came in his life is important. उसके जीवन में जो बदलाव आया वो जरूरी थी। So 38 talks about that. तो 38वां अध्याय उसके बदलाव के बारे में बताती है। Joseph has been cast out of his father's house, but Judah leaves at the same time his father's house by his own choice. यूसुफ को तो उसके बाप के घर से निकाल दिया गया था, लेकिन यहूदा अपनी इच्छा से अपने बाप के घर को छोड़ के चला जाता है। Genesis 38:1. उत्पत्ति 38:1। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा उन्हीं दिनों में। It's written in English, at the same time when Joseph was sold off, thrown out, at the same time Judah also left house. जिन दिनों में यूसुफ को बेच दिया गया, उन्हीं दिनों में यहूदा अपने बाप के घर को छोड़कर निकल गया। Left his father, his friend, his brothers, his fellowship. He left completely.
उसने अपने बाप को, अपने भाइयों को, संगति को छोड़ दिया And पूरी then his तरह से। life started falling further. और फिर उसका जीवन गिरने लग गया। He married a Canaanite woman उसने एक कनानी स्त्री से शादी कर ली who were terribly immoral. और वो बहुत अनैतिक था, जीवन था उसका। Abraham had told his servant in Genesis 24, do not get a wife for my sons from the Canaanites. अब्राहिम ने अपने सेवक को बताया था कि मेरे बेटे के लिए कनानियों में से किसी लड़की को ब्याह के मत ले आना। But this self-centered, immoral man did exactly that. लेकिन इस स्वार्थी आदमी ने बिल्कुल यही किया। He gave birth to 3 sons. The first was there. He got her married to a woman called Tamar. और उसके 3 बेटे हुए। और भाई रिपीट कर दे भाई से। He got his first son there married to a Canaanite woman called Tamar. उसका पहला बेटा उसकी शादी कनानी स्त्री तमार से हुई। Now the Bible says was wicked and the Lord killed him. और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था और परमेश्वर ने उसे मार दिया। Again I'll repeat Barnhouse because I love Barnhouse. एक बार फिर मैं बार्नहाउस भाई के बारे में बताता हूँ क्योंकि मुझे बार्नहाउस बहुत प्यारा लगता है। I would actually recommend you to read Donald Barnhouse. His language is so beautiful. मैं तो चाहूंगा कि आप डोनाल्ड बार्नहाउस को पढ़ें, उसकी भाषा इतनी सुंदर है। Especially I'll recommend it to Navneet. Donald Barnhouse says, डोनाल्ड बार्नहाउस कहता है, I'll put it in simple English. He says, the Bible that is so open about the worst kind of sins doesn't tell us the sin of earth. और बाइबल जो पाप के बारे में खुल के बताती है, वो बाइबल उसके पहले बेटे के पाप के बारे में नहीं बताती। The worst sins the Bible openly tells about it. उसने बहुत दुष्ट पापों को खोलकर बता दिया बाइबल ने। But doesn't tell the sin of error because Brother Barnhouse says it was probably so perverted that even the Bible could not tell. और उसका उस यहूदा के पहले बेटे का जो पाप था इतना भयानक होगा कि बाइबल भी उसको बड़ी बाइबल भी उसको नहीं बता सकी। Simply said he was wicked. बस उसके बारे में ये कह दिया कि वो दुष्ट था। Then Tamar was given to Onan to raise seed through him. और फिर तमार की शादी ओनान के साथ हुई ताकि उसका पुत्र उससे हो। But Onan also did not follow his responsibility. लेकिन ओनान ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। The Lord killed him. प्रभु ने उसको मार दिया। The third, the younger one, was Shelah, and now Judah was afraid, if I marry him to Tamar, he will also die. अब उसका तीसरा बेटा शेला छोटा था और उसके पिता यहूदा को डर था कि यदि मैंने इसकी शादी तमार से कर दी तो शायद ये भी मर जाए। So he gave her a false promise. Let Shelah grow up, then I'll marry him to you. फिर उसने तमार को एक झूठा आश्वासन दिया कि शेला को बड़ा होने दे और फिर मैं तेरी शादी इसके साथ कर दूंगा। Tamar stayed in her father's house as a widow without a child, but when even Shelah grew up, Judah did not give him to her. तमार अपने बाप के घर में वापस आ गई और वहां पे वो बिना बच्चे के रही। लेकिन जब शेला बड़ा हो गया तो यहूदा ने शेला का ब्याह तमार के साथ नहीं किया। Now, please understand, in that culture, to be a widow without a son was a very difficult situation to live. उन दिनों में ये बात समझिए कि एक विधवा होकर और बिना पुत्र के जीना बड़ा मुश्किल होता था। So Tamar, being a Canaanite, had a wicked idea. तो तमार क्योंकि एक कनानी स्त्री थी, उसके पास एक दुष्ट विचार था। Because the child had to be born from the same household, she came to know that Judah's wife is killed, and he is now consoling himself in a nearby place. और उसने एक दुष्ट योजना बनाई और उसको पता चला, और ये था कि जो तमार को जो पुत्र होना था वो उसी परिवार में से होना था। तो और उसको पता चला कि यहूदा की पत्नी मर गई है और वो यहूदा कहीं दूसरी जगह जाकर अपने मन को बहलाता है। Please read Genesis 38:13. पढ़िए उत्पत्ति 38:13। और तमार sorry no था 13 और 14 दोनों पढ़ दी। और तमार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब उसने ये सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया
और अनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। Yeah, she sat there like a prostitute. वो वहां पर एक वेश्या का भेष बनाकर बैठ गई। Why? क्यों? Because she knew her father-in-law. क्योंकि वो अपने ससुर को जानती थी। He had a habit of going to prostitutes. उसकी आदत थी वेश्याओं के पास जाना। The father-in-law was an immoral man. उसका ससुर अनैतिक व्यक्ति था। And when he sees her here, he will not be able to resist. और जब वो वहां पे एक वेश्या को बैठी हुई देखेगी तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। He can't make out his daughter-in-law. वो पहचान नहीं पाएगा कि ये उसकी बहू है। Now here is the contrast between Genesis 38 and 39. और यहाँ पर उत्पत्ति 38 और उत्पत्ति 39 में तुलना है। When Joseph is alone, the same temptation comes upon him. Joseph says, how can I do this great wickedness and sin against God? जब यूसुफ अकेला था, उसके ऊपर भी जब यही परीक्षा आई तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के विरोध में ये पाप कैसे कर सकता हूँ। For him, holiness was very precious. उसके लिए पवित्रता बहुत कीमत रखती थी। But for Judah, holiness is cheap. लेकिन यहूदा के लिए पवित्रता का कोई कीमत नहीं थी। For him, going to a prostitute is like going to buy a cup of coffee. उसके लिए वैश्या के पास जाना एक चाय पीने के समान था। Makes no difference. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। It was so easy for him उसके लिए इतना आसान था to sell his holiness. अपनी पवित्रता को बेच देना। Do you make your holiness cheap? क्या आप उसकी पवित्रता को इतना सस्ता बना देते हो? When you are on the internet, when you are on YouTube, do you watch things easily? Don't you? You feel ashamed when you see something that is wrong. और जब आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप उसकी पवित्रता को सस्ता बना देते हो और आप कुछ ऐसी चीज देखते हो जिस पे आपको शर्म आनी चाहिए। Do you count the blood of the Lord Jesus cheap when you say immediately, very just like a ritual, Lord, forgive me? और जब आप रीति के अनुसार उसको कहते हो प्रभु मुझे माफ कर दे, क्या आप प्रभु के खून को सस्ता नहीं बना देते? When the truth came out that it was his daughter-in-law, जब ये सच्चाई प्रकट हुई कि ये उसकी बहू थी, he wanted to stone her. वो उसको पथराव करके मार देना चाहता But था। then it came out that it was he who had done this thing with her. He had impregnated her. और फिर पता चला कि ये वही है, ये वो है जिसने उसे गर्भवती ठहराया है। And like the prodigal son, when the truth came out, Judah came to his senses. He was so shocked. और जब उसके सामने सच्चाई आई, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह वो अपने आपे में आया और एकदम सख्ते में आ गया। And we see repentance in his life. और हम उसके जीवन में पश्चाताप देखते हैं। Repentance means change of mind, change of thinking. पश्चाताप का मतलब सोच का बदल जाना, व्यवहार का बदल जाना। He had thought the daughter-in-law is immoral. Now he realized I am far more immoral. उसने तो सोचा था उसकी बहू अनैतिक है, लेकिन उसे तो पता चला मैं तो उससे भी बदतर हालत में हूँ। Read Genesis 38:26. पढ़िए उत्पत्ति 38 उसकी 26 आयत। हाँ जी भाई। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। Yeah, he says she's more righteous than I. उसने कहा कि वो मुझसे ज्यादा धर्मी है, Because I deceived her. क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया। I forced her to behave like this. मैंने उसको मजबूर किया कि वो ये सब करे। Just imagine the Lord's genealogy has all these names. Perez and Zerah, the two children born out of this relationship. आप कल्पना कीजिए प्रभु की वंशावली में ये ऐसे सब लोग हैं। तामार के दो बेटे Perez or Zerah. पेरेज और जेरा, Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, all these names are there. तमार, राहाब, रूत, बाशिबा, ये सारे नाम हैं। The Lord could choose his ancestors. प्रभु अपने पूर्वजों को चुन सकता था। You and I can't. आप और मैं नहीं चुन सकते। If there is a Kala character in my ancestry, I can't change that. यदि मेरी पीढ़ी में कोई बुरा चरित्र है तो मैं उसको बदल नहीं सकता। I will cover it up.
मैं उसको ढापूंगा। But the Lord talks about it right in the beginning of the New Testament, first chapter. He writes all these names as if they are badges of honor. लेकिन प्रभु ने तो अपने पहले अध्याय में ही अपने उन सारे काले चरित्रों के बारे में बता दिया जैसे कि वो हाँ, आदर की बात हो। We do that when we meet people. हम ऐसा करते हैं कई लोग। Oh, my father is so and so, my uncle is so and so. The first thing we tell people is, oh, how great a family I belong. मेरा हम कहते हैं मेरा पिता ऐसा था, मेरा चाचा ऐसा था, मेरे पूर्वज ऐसे थे। Look at what the Lord is doing. लेकिन देखिए प्रभु क्या कह रहा है। My great grandmother was Ruth, Rahab, Tamar, Bathsheba. मेरी परदादी परदादी तमार थी, रूथ थी, राहाब थी, बाशिबा थी। One was a Moabite, one was a prostitute, one slept with her father-in-law, one slept with David. एक वेश्या थी और एक अपने ससुर के साथ सो गई और एक अनैतिक स्त्री थी। Suppose I have two uncles, for example. One is some major general in the army, and the other is a adulterer. I would only quote the one who is a successful man. यदि मेरे दो चाचा है, एक फौज में मेजर जनरल है और दूसरा व्यभिचारी है, तो मैं मेरा जो चाचा है जो मेजर जनरल है मैं उसी के बारे में बताऊंगा। The Lord never does that. प्रभु ऐसा नहीं करता। He has chosen people like you and me to be His own children. उसने मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को चुन लिया कि वो अपनी संतान बनाए। Hebrews 2:11 says He is not ashamed to call them brothers and sisters. इब्रानियों 2:11 बताता है कि उसको शर्म नहीं आती आपको और मुझको अपना भाई बताने में। Now we come to Genesis 43. We come to the story where they have come to Egypt to buy bread, and now they are face to face with Joseph. और अब हम इस कहानी में आते हैं, उत्पत्ति 43 अध्याय में उनके पास रोटी नहीं है और वो मिस्र में यूसुफ के सामने आमना सामना कर रहे हैं यूसुफ का। I'm assuming that most of us know the story. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग इस कहानी को जानते हैं। Now the tables have turned. Joseph is in control. They are in subjection to him. अब पासा पलट गया है। अब यूसुफ बड़ा है, उसके नियंत्रण में वो है और वो उसके अधीनता में है। But there is no hatred in Joseph. लेकिन यूसुफ में कोई नफरत नहीं है। He only wants to see whether there is repentance in their life. वो तो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि उनके जीवन में पश्चाताप है कि नहीं। Why? क्यों? Because there can be no reconciliation without repentance. क्योंकि बिना पश्चाताप के मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। Joseph cannot reveal himself to his brothers without repentance. यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट कर ही नहीं सकता The जब तक Lord उसके भाई पश्चाताप ना करें। The Lord does not reveal himself to people who do not repent. प्रभु अपने आप को उन लोगों के ऊपर प्रकट नहीं करता जो नहीं पश्चाताप करते। No reconciliation without repentance. बिना पश्चाताप के कोई मेल मिलाप नहीं होता। People tell us, "Bhai, let us love. We are all together." लोग कहते हैं हम सब एक हैं, प्यार करें एक दूसरे से। हाँ, वो भी तो प्रभु के लोग हैं। वो भी तो प्रभु के लोग हैं। We are all one. हम सब एक हैं। No. नहीं, ऐसा नहीं है। There is no reconciliation without repentance. बिना पश्चाताप के कोई मेल मिलाप नहीं। I will pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। I will never want bad to happen to them. मैं नहीं चाहूंगा कि उनके साथ कोई बुरा हो। But reconciliation can happen only with repentance. लेकिन एक मेल मिलाप पश्चाताप के द्वारा ही होएगा। 2 Peter 3:9 says, God does not want any to perish, but all to come to repentance. पहला पत्रस 3:9 बताती है परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो बल्कि सब पश्चाताप करें। Luke 13, the Lord says in verse 3 and verse 5, He says, unless you repent, you will all likewise perish. लूका 13:3-5 में प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम पश्चाताप ना करोगे तुम सब ऐसे ही नाश हो जाओगे। John 3:16 says that they may not perish but have everlasting life. यूहन्ना 3:16 कहते हैं कि वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाएं। The only way not to perish is repent. नाश ना होने का एक ही तरीका है कि वो पश्चाताप कर लें। Repentance is the foundation of a believing life. एक विश्वासी जीवन का आधार पश्चाताप है। When John the Baptist and the Lord began to preach, the first word they said was repent.
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु ने प्रचार करना शुरू किया तो पहला शब्द उन्होंने प्रचार किया, पश्चाताप करो। And that is what Joseph wanted to see. Do they have repentance? और यूसुफ यही बात देखना चाहता था कि क्या वो पश्चाताप किया है उन्होंने। Repentance is seen through the works of repentance, पश्चाताप के कामों के द्वारा दिखाई देता है, not through words. पश्चाताप शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं होता। In Matthew 3:8, John the Baptist says, bring forth fruit worthy of repentance. मत्ती 3:8 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि पश्चाताप के अनुसार फल लेकर आओ। Every time you read a story of repentance in the Bible, it's followed by a question, what shall we do? जब कभी हम नए नियम में पश्चाताप की कहानी के उदाहरण को पढ़ते हैं तो एकदम से उसके बाद यह आता है कि प्रभु बता अब हम क्या करें। Your repentance is seen through your life and how you live. आपका पश्चाताप आपके जीवन से प्रकट होता है कि आप कैसे जीते हो। Your words can be completely hollow. आपके शब्द एक सारे खोखले हो सकते हैं। If the works are not there, यदि काम नहीं हो तो see every example of repentance. आप पश्चाताप के हर एक उदाहरण को देखें। When John the Baptist preached, soldiers came, people came, they all asked him, what shall we do? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया तो लोग आए, सिपाही आए, उन्होंने बोला हम क्या करें। When Peter preached in Acts chapter 2, the people came and said, what shall we do therefore, brothers? Sirs, what shall we do? और जब पतरस ने प्रेरितों का 2 अध्याय में प्रचार किया तो लोगों ने बोला कि हम क्या करें। Acts 16:30, when the jailer met Paul and Silas, he said, what should I do? प्रेरितों काम 16:30 में जब उस जेलर की मुलाकात पौलुस और सिलास से होती है, जेलर बोलता है मैं क्या करूं। I think it's verse 30. And then Paul himself, when he met the Lord, he said, Lord, what do you want me to do? और जब पौलुस खुद जब उसने अपने आप को प्रभु को सौंपा तो उसने प्रभु से बोला कि प्रभु मैं क्या करूं। Joseph wanted to see fruits of repentance. यूसुफ उनके जीवन में पश्चाताप के फल देखना चाहता था। Your words don't matter much if there is no life to back it up. आपके शब्दों का कोई मतलब नहीं होता यदि आपके शब्दों के पीछे आपका जीवन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। When Martin Luther stood up against the Catholic Church, he wrote, I think 95 or 98 theses, and he nailed them to the church at a place called Wittenberg. जब मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च के विरोध में खड़ा हुआ तो उसने 98 पॉइंट्स की थीसिस लिखी और उसको विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पे गाड़ दिया। And the first thesis was, और उसका पहली बात ये थी, the life of the faithful is a life of constant repentance. एक विश्वासी का जीवन निरंतर पश्चाताप करने वाला जीवन होता है। And it is seen through my life. और ये मेरे जीवन से दिखाई देता है। It is the way I think, the way I talk, the way I do things. ये जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जिस तरह से मैं चीजों को करता हूँ, जिस तरह से मैं जीता हूँ, उसके द्वारा प्रकट होता है मेरा पश्चाताप। I sin every day, but I repent. मैं हर रोज पाप करता हूँ लेकिन हर रोज पश्चाताप भी करता हूँ। And bit by bit the life gets transformed. और धीरे धीरे करके जीवन बदलता जाता है। So the crisis happened here that Benjamin was caught with a silver cup. तो यहाँ पे संकट आया कि बिन्यामीन के पास वो चांदी के बर्तन पाए गए। The accusation was Benjamin had stolen it. और ये इल्जाम ये था कि बिन्यामीन ने उसको चुराया है। So Joseph said, I will keep Benjamin as my slave. All of you can go back. और तो यूसुफ ने बोला मैं बिन्यामीन को अपने पास रखूंगा गुलाम की तरह, बाकी सब तुम चले जाओ। Now Joseph wanted to see what will these brothers do. अब यूसुफ देखना चाहता था अब ये भाई क्या करेंगे। Are they the same hard-hearted people? क्या ये वही कठोर लोग हैं? Will they out of self-preservation say, let's go, Benjamin anyway is responsible, he's a thief, let's leave him behind, let's go, yaar, let's get out of this place. क्या ये कहेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी करी है, इसको फंसने दो, पड़े रहने दो, हम तो अपनी जान बचाएं, यहाँ से चलें। But see one thing, none of the brothers blamed Benjamin, not even one. लेकिन देखिए एक भी भाई ने बिन्यामीन के ऊपर दोष नहीं लगाया। And Judah, their spokesperson, comes forward.
और यहूदा जो उनकी अगुवाई कर रहा था वो सामने निकल कर आया। And again, Brother Barnau says this is the greatest example of natural oratory in literature. और फिर से भाई बरनाउस बताता है कि यहूदा के जो शब्द है, यहूदा ने जो उस समय बोला, ये साहित्य के बहुत अच्छे शब्द है साहित्य में। Whenever I read this prayer of Judah, my heart literally, I cannot go forward. It's so amazing. जब कभी मैं यहूदा के इन शब्दों को पढ़ता हूँ जो उसने बोला, वो मुझे वहीं पे जकड़ के रख लेते, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। He intercedes for Benjamin. वो बिन्यामीन के लिए अपने हाथ फैला रहा है। He doesn't blame Benjamin. वो बेंजामिन के ऊपर दोष नहीं लगाता। He doesn't try to defend him in front of Joseph. वो यूसुफ के सामने उसको सही नहीं ठहरा रहा। He comes only for mercy. वो तो सिर्फ दया मांग रहा है। For him, Joseph is the prime minister of Egypt. He doesn't know he's Joseph. और उसके लिए तो यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री, उसे नहीं मालूम ये यूसुफ है। And 14 times in this small story, he uses the word father. और 14 बार इस कहानी में उसने पिता का नाम लिया। 3 times he mentions, if I leave Benjamin behind, my father will die. 3 बार वो कहता है, यदि मैं बिन्यामीन को छोड़ दूं तो मेरा पिता मर जाएगा। When Joseph was gone, now Jacob loved Benjamin like he used to love Joseph. अब जब यूसुफ चला गया तो यहूदा बिन्यामीन को ऐसे प्यार करता था जैसे वो यूसुफ था। But now Judah and the brothers have no bitterness, no hatred, no jealousy against Benjamin. लेकिन अब यहूदा के मन में भाई और दूसरे भाइयों के मन में बिन्यामीन के लिए कोई जलन नहीं है। There is only love in action in Judah's words. उनके जीवन में तो प्यार है, उनके कामों में तो बिन्यामीन के प्रति प्यार है। What is this change of mind? What is the repentance here? यहाँ पे इनके मन में क्या बदलाव है? ये पश्चाताप कैसा पश्चाताप है? They had sold their brother to slavery. उन्होंने अपने भाई को गुलामी में बेच दिया। Now Judah is willing to sell himself in slavery for another brother like Joseph. और अब यहूदा अपने आप को यूसुफ की तरह एक दूसरे भाई के लिए अपने आप को गुलामी में बेचने के लिए तैयार है। He is not a fool. He knows the cost. वो बेवकूफ नहीं है, वो इस बात की कीमत को जानता है। I will never see my family again, never see my children again. I'll always be a slave. मैं फिर कभी अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगा, मैं हमेशा गुलाम बन के जीऊंगा। This man who always thought about me, myself, now all the selfishness is gone. ये आदमी जो हमेशा स्वार्थी बना रहा, जिसने हमेशा अपने आप को, खुद को देखा, अब उसका सारा स्वार्थ जाता रहा। And he's so low. I'm not that important. Benjamin is very important. और वो अब इतना नीचे आ गया, वो कह रहा है कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, बिन्यामीन महत्वपूर्ण है। Now hear me carefully. अब ध्यान से सुनिए। What is the meaning of Benjamin? बिन्यामीन का मतलब क्या होता है? Son of his right hand. हाँ, रिपीट कर दे भाई। दाहिने हाथ का पुत्र। दाहिने हाथ का, हाँ, उसके दाहिने हाथ का पुत्र। उसके दाहिने हाथ का पुत्र। Whose son of his right hand? किसके दाहिने हाथ का पुत्र? Jacob, the father's son of the right hand. याकूब के दाहिने हाथ का पुत्र। Who is the son of the right hand of the father? The Lord Jesus Christ. पिता के दाहिने हाथ का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। So Judah is saying, तो यहूदा कह रहा है, for the love of the father and the love of the son of his right hand, I am willing to give myself. यहूदा कह रहा है, पिता के लिए और पिता के दाहिने हाथ के बेटे के लिए मैं अपने आप को देने के लिए तैयार हूं। The love of this son compels me. अब इस पुत्र के प्रति प्यार मुझे मजबूर कर रहा है। 2 Corinthians 5:14, Paul says the love of Christ compels us that when he died for us, we ought to do something for him. आप 2 कुरिन्थियों 5:14 हमें मजबूर करता है कि जब पुत्र ने हमारे लिए अपने आप को जान दिया कि हम भी कुछ करें। And what is he giving up? और वो क्या दे रहा है? What is he giving up for the son and the father? वो पिता और पुत्र के लिए क्या दे रहा है? He is giving up all. He is loving them with his heart, mind, soul and strength. वो सब कुछ दे रहा है, वो अपने दिल से, दिमाग से और पूरे प्राण और शक्ति से प्यार कर रहा है। He looks like Abraham on Mount Moriah.
वो मोरिया पर्वत पर अब्राहिम की तरह लग रहा है। He looks like the Lord on the cross. वो क्रूस के ऊपर प्रभु की तरह लग रहा है। The son of the right hand is important. I am not important. पिता के दाहिने हाथ का पुत्र महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। I must decrease. He must increase. मैं घटूं और वो बढ़े। This is true repentance. ये सच्ची ये होता है सच्चा पश्चाताप। This is the fruit of true repentance. ये सच्चे पश्चाताप का फल होता है। When the love of the son compels me to do something for him. जब बेटे के प्रति प्यार मुझे कुछ उसके लिए करने के लिए मजबूर करता है। Desire to love him with all my heart, mind, soul and strength. कि मैं उसको अपने पूरे मन से, शक्ति से, प्राण से और आत्मा से प्यार करूं। That I must decrease in my life and he must increase. कि मैं अपने जीवन में घट जाऊं और वो बढ़ जाए। And that is what Joseph saw in Judah, and he revealed himself to them. और यही बात यूसुफ ने यहूदा में देखी। Now please understand the difference between guilt conscience and repentance. अब जब पाप कायल करता है उसमें और पश्चाताप में अंतर देखिए। Judas had a guilt conscience. यहूदा का पाप उसको कचोटता था। Quickly read Matthew 27:34. Matthew 27:3. Matthew 27:3. मत्ती 27:3 पढ़ दीजिए। मत्ती 27:3। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुन्नियों के पास फेर लाया। And fourth verse. और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। I have sinned. मैंने पाप किया है। But what does David pray? David prays, I have sinned against the Lord. लेकिन दाऊद ने क्या किया? क्या प्रार्थना करी? मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। What did the prodigal son pray? He said, Father, I have sinned against you and against heaven. और पुड़ाऊ पुत्र ने क्या प्रार्थना करी? पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। Psalm 51, David says, against you only have I sinned and done this wickedness in your sight. भजन 51 में दाऊद कहता है, मैंने तेरे और तेरे विरोध में ही पाप किया है। It is not just guilt, I have sinned. It is repentance, I have sinned against God. ये अपराध बोध नहीं है कि मैंने पाप किया है, बल्कि ये पश्चाताप है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। Some people don't repent. कुछ लोग पश्चाताप नहीं करते। The 2 Corinthians, Paul talks about it. They just have some sorrow. I am wrong. I have done this wrong thing. उनको सिर्फ दुख होता है किसी गलती पर कि मैंने ये गलती कर दी। But true repentance is, Lord, I have done this against you and I want to change. लेकिन सच्चा पश्चाताप ये होता है कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैं बदलना चाहता हूँ। We don't have time to see repentance's transformation, change from inside. और हमारे पास समय नहीं है देखने के लिए। पश्चाताप का मतलब होता है भीतर से बदल जाना। And repentance brings real joy to the Lord. और पश्चाताप से प्रभु वास्तविकता में आनंदित हो जाता है। Do you have repentance or just plain guilt? क्या आप वास्तविकता में पश्चाताप कर रहे हैं या सिर्फ आपको अपने पापों पे अफसोस है? Many times we don't repent. We just have a guilt. We pray a short prayer. Lord, I've done this. And we don't. But after going from the bhavan, we forget all about it. कई बार हम पश्चाताप नहीं करते, हमें सिर्फ अपने पापों पे अफसोस होता है और हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर भवन से निकलते हैं और फिर पुराने जीवन में चले जाते हैं। The same bitterness, the same thing, all of it comes back into our heart. वो पुरानी कड़वाहट वो सब हमारे दिल में वापस आ जाती है। Somebody said, किसी ने कहा, you hear a message and say it was a good message. आप एक संदेश को सुनकर कहते हो भाई अच्छा संदेश था। Or you hear a message and say, I will do something about it. या फिर ये कहते हो मैंने ये संदेश सुना और मैं कुछ करूंगा अब। I will do something about my life. अब मैं अपने जीवन के विषय में कुछ करूंगा। Lord, I want to change. प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। Of course, this change comes bit by bit. सही है, ये बदलाव धीरे धीरे करके आता है। But as Martin Luther said, a life of a believer is a life of constant repentance. जैसे भाई मार्टिन लूथर कहते हैं कि एक विश्वासी का जीवन निरंतर पश्चाताप का जीवन होता है। I am delivered from my sinful nature every day. मैं मेरे पाप के स्वभाव से हर रोज छुटकारा पाता हूँ।
Bit by bit, you will get transformed if you have a life of true repentance. आप धीरे धीरे करके बदलते जाओगे यदि आपके पास पश्चाताप का वास्तविक जीवन है तो। Do you love the Son and the Father? क्या आप पिता और पुत्र को प्यार करते हो? Does the love compel you to do something for them? क्या प्यार आपको मजबूर करता है कि आप उनके लिए कुछ करो? Do you want to live a life? Lord, I want to give heart, soul, mind, strength. I want to love you. प्रभु, क्या आप कहते हो कि प्रभु मैं तुझसे पूरे दिल से, मन से और पूरी शक्ति से प्यार करना चाहता हूँ? Yes, I trip and fall hundreds of times in one day. हाँ, मैं दिन में 100 बार गिर जाता हूँ। But I will repent. लेकिन मैं पश्चाताप करूंगा। And I say, Lord, I want to change. और प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। I must decrease, you must increase. प्रभु मैं घटूं और तू जरूर बढ़े। Whether it is even if bit by bit. चाहे भले ये धीरे धीरे हो ऐसा। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे।